हरे कृष्ण नी नाम में शरणम। ओम नमो भगवते श्रील हरि कृष्णाय। ओम नमो भगवते श्रील हरि कृष्णाय। भक्ति में लीन तो हम सभी हो चुके हैं, पर भक्ति के साथ साथ आज जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, यानी कि एक बहुत ही अच्छी पुस्तक, एक बहुत ही अच्छी किताब, जिसका मैं वर्णन आप सभी के सामने आज रखना चाहूँगी। यहाँ पर विमुक्ति का रहस्य नामक पुस्तक, जिसका उद्घाटन आज यहाँ पर होने वाला है आप सभी के उपस्थिति में, और जहाँ पर इतनी प्यारी ऑडियंस हो, इतने प्यारे भक्तजन हो और इतनी प्यारी रचना को पढ़ने वाले लोग हों, उस कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ, एक बहुत ही अच्छे हौसले के साथ, एक बहुत ही अच्छी खुशहाली के साथ होना चाहिए। तो एक बार ज़ोरदार तालियां अपने लिए भी बजा लीजिए। कार्यक्रम के शुभारंभ की ओर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी शुभ घड़ी की शुरुआत से पहले, किसी भी शुभ मुहूर्त की शुरुआत से पहले हम श्रीमन नारायण श्री लाहौरी कृष्ण के श्री मंत्र के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ करने जा रहे हैं। अपने प्रभु परमेश्वर श्री हरे कृष्ण वही एक पवित्र 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 है, वो सदाकाल जीवित है, अपने प्रेम के पुण्यदान पर विमोचन किया है, वही बड़ा कृपा निरंतर रहेगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत देश क्षेत्र श्रीमनारायण हरे कृष्ण होते। आप सभी के बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें मैं भगवत गीता के वचन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। माननीय श्री रामकृष्ण जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं आप सभी के बीच उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। భారతదేశం గర్వించదగినటువంటి ఒక అంశానికి మనం అందరం నాయకులం. ఆ అంశమే భగవద్గీత. ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడ ఏ పని చేసినా కూడా భగవద్గీతను ఆదర్శంగా తీసుకొని దాంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలని వారు ఆచరించి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి విజయాల్ని సాధించి తర్వాత తరం వారికి వారు ఆదర్శంగా నిలబడ్డారు. కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో యుద్ధానికి ముందు కార్తీక అమావాస్య నాడు సుమారుగా 5130 సంవత్సరాల క్రితం కలియుగంలో ఉండేటువంటి తన భక్తులకి ఆదేశిక ధర్మ బోధన చేయాలనే నెపంతో అది ఎప్పుడు చెయ్యాలా అని ఎదురు చూస్తున్న కృష్ణ పరమాత్మకి అర్జునుడి యొక్క నిరాశ నిస్పృహ కనిపించినాయి. ఎలా తన బంధువులందరినీ చూశాడు, స్నేహితులందరినీ చూశాడు, వీళ్ళందరితోనే యుద్ధం చెయ్యాలా, నేను చెయ్యను, వీళ్ళని సంహరించవలసిన అవసరం నాకు లేదు అని కృష్ణ పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళి దీనంగా భక్తితో ఆయన వేడుకున్నాడు. నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచరాజ్యం సుఖానిచ కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగయి జీవితేనా వాన్. ఏమయ్యా, నాకెందుకయ్యా ఈ రాజ్య సుఖాలు, ఈ భోగాలు, వీళ్ళందరినీ సంహరించి నేను ఈ రాజ్యాన్ని పొంది సుఖపడగలనా? నాకు వద్దు, నన్ను వదిలేసే, నేను వెళ్ళిపోతాను. నువ్వు కూడా వస్తావా? ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాము, అడవుల్లోకి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుందాం అన్నాడు ఆయన. ఇది భగవద్గీతకి నాంది శ్లోకం అండి. 700 శ్లోకాలతో మనకి భగవద్గీత లభించింది. 18 అధ్యాయాలు. ఈ 18 అధ్యాయాలని వ్యాసుల వారు 3 భాగాలు చేశారు. మళ్ళా మొదటి 6 అధ్యాయాలని కర్మ షట్కము అన్నారు ఆయన. రెండో 6 అధ్యాయాలని భక్తి షట్కము అన్నారు.
ఆరు అధ్యాయాల్ని మోక్ష లేదా జ్ఞాన షట్కము అన్నారు. ఈ 3 అధ్యాయాలు కూడా మానవుడికి కావలసినటువంటి అంశాలు. మొట్టమొదటి కర్మయోగం చేయాలి. కర్మణ్యే అవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మఫలహే దుర్పు మా తే సంగోస్త కర్మణి. అల్లవయ్య వెళ్ళి నీ పని చెయ్యవయ్యా అన్నాడు. మరి ఏ పనన్నా నుంచుని ఆలోచిస్తుంటే ఆ పని మొదలవద్దు, పూర్తి అవ్వదండి. ముందు పనిలోకి దిగాలి. కర్మణ్యే అవాధికారస్తే. మరి ఈ పని చేసేటప్పుడు జయ అపజయాలు ఉంటాయి కదా. హతోవా ప్రాప్సతి స్వర్గం. మొట్టమొదటి అపజయానికే మనం కారకులం. ఒకవేళ జిత్వావా భోక్షసే మహీం. గెలుపు వస్తుందయ్యా. గెలుపు ఓటములకి భయపడి మానేస్తావా? తస్మాత్ ఉత్తిష్ట కౌంతేయ. లేవయ్యా, లే లే లే. ఉత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ. వెళ్ళి యుద్ధం చేయి. యుద్ధం అంటే ఏంటండి? పోరాటం. कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी प्रस्तुति को आमंत्रित करना चाहूँगी। साथ साथ चलते रहे, संग संग जीते रहे, साथ साथ चलते रहे, संग संग जीते रहे। तू हमारा है हमदम, लहरी कृष्ण हो भगवान। तू हमारा है हमदम, लहरी कृष्ण हो भगवान। तेरी स्तुति कीर्तन गाकर तेरा जय जयकार करे। तेरी स्तुति कीर्तन गाकर तेरा जय जयकार करे, तेरा सम्मान करे। साथ साथ चलते रहे, संग संग जीते रहे, साथ साथ चलते रहे, संग संग जीते रहे। तू हमारा है हमदम, लहरी कृष्ण हो भगवान। तू हमारा है हमदम, लहरी कृष्ण हो भगवान। राह अपनी छोड़कर हम तेरे लिए है आए। राह अपनी छोड़कर हम तेरे लिए है आए। इच्छाओं को त्याग कर हम पास है चले आए। इच्छाओं को त्याग कर हम पास है चले आए। तुझ में ही कहा कर तुझ में ही बस जाए। तुझ में ही कहा कर तुझ में ही बस जाए। मगन तुझ में हो जाए। साथ साथ चलते रहे, संग संग जीते रहे, साथ साथ चलते रहे, संग संग जीते रहे। तू हमारा है हमदम, लहरी कृष्ण हो भगवान। तू हमारा है हमदम, लहरी कृष्ण हो भगवान। आगे बढ़ेंगे और मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री रिकेश सेन जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, विधायक वैशाली नगर भलाई। इसके पश्चात माननीय श्री शंकर प्रसाद एल वेमुला जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, फाउंडर एंड चेयरमैन वेमुला चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई। इसके पश्चात माननीय श्री डी विजय कुमार डिविजनल कोऑर्डिनेटर। इसके पश्चात श्री लुंडे अपा जी रिटायर्ड डीजीएम एनएमडीसी बचेली से हमारे बीच आए हुए हैं। माननीय श्री राम सूर्यवंशी जी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ लेबर कांग्रेस। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। माननीय श्री काजा रामाकृष्ण जी भगवत गीता वार्षिनी विजयवाड़ा। माननीय श्री वेद प्रकाश पांडे जी बीजेपी सेक्रेटरी चरोदा भलाई।
एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। निशांत श्याम कुंवर जी, सिविल इंजीनियर दुर्ग, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। माननीय श्री रॉबर्ट जोसेफ, MCM भलाई, माननीय श्री भगवत आचार्य कोरापुट, माननीय श्री देवेंद्र बाबू पेंदुर्ती, उन्हें भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। और जब हमारे अतिथिगण यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमारे सम्मान्य जन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है अपने स्थानों पर खड़े होकर हम आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ डिवोटीज ऑफ भगवान श्री लहरी कृष्णा प्रेयर सॉन्ग के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। गोपी गोपाला हे नंद लाला, गोपी गोपाला हे नंद लाला, हे नंद लाला हे मुरली वाला, हे नंद लाला हे मुरली वाला, गोपाला गोपाला हे लहरी कृष्णैया, गोपाला गोपाला हे लहरी कृष्णैया, लहरी कृष्णैया। ईसाई जो कहते हैं यीशु मसीहा, ईसाई जो कहते हैं यीशु मसीहा, मैं तो कहूँ सावरिया लहरी कृष्णैया, मैं तो कहूँ सावरिया लहरी कृष्णैया। सर्वधर्म बोले जो लहरी कृष्णैया, सर्वधर्म बोले जो लहरी कृष्णैया, मैं तो कहूँ सावरिया लहरी कृष्णैया, मैं तो कहूँ सावरिया लहरी कृष्णैया। गोपी गोपाला हे नंद लाला, गोपी गोपाला हे नंद लाला, हे नंद लाला हे मुरली वाला, हे नंद लाला हे मुरली वाला, गोपाला गोपाला हे लहरी कृष्णैया, गोपाला गोपाला हे लहरी कृष्णैया, लहरी कृष्णैया। अब इसके पश्चात मैं वेलकम एड्रेस के लिए हमारे बीच माननीय श्री P सेंथिनाथ अल जुबैल सऊदी अरेबिया से आए हुए हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। तमिलनाडु तिरुनेलवेली में स्थित मनुज्योति आश्रम मानव जाति को उपहार के स्वरूप अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों को आयोजन करते हैं और उसी द्वारा हम लोग विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुस्तकों और वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज, गीत संगीत, पत्रिकाएं और सूचना पत्र जारी करते आ रहे हैं। हम इसी कार्य को निर्वहन करते हैं। इसी संदर्भ में मनुज्योति आश्रम और भिलाई में स्थित श्री लहरी कृष्णा को भक्तजनों के द्वारा विमुक्ति का रहस्य इस पुस्तक का प्रमोशन कार्यक्रम में आप सभी का मनुज्योति आश्रम की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मुंबई में स्थित वेमुला चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष श्री शंकर प्रसाद वेमुला जी के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथिगण दुर्ग जिला के माननीय लोकसभा सदस्य श्री विजय बहल जी आ रहा है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। पहले से वो आ रहे हैं, रास्ते में है। और वैशाली नगर भिलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय सदस्य श्री रिकेश सेन जी आए हुए हैं। इन्होंने अपना कीमती समय देकर ये कार्यक्रम के लिए उसने आकर शोभा दिया है। इस कार्यक्रम के लिए मैं उनको विशेष रूप से मनुज्योति आश्रम की तरफ से स्वागतम करता हूं। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तगणों और आम जनता जो भी है, आप सब जो ये कार्यक्रम के लिए भाग लेने के लिए आए हुए हैं, आप लोग को इस कार्यक्रम में आने से आपको श्री लहरी कृष्णा का आपका आशीर्वाद भी मिलेगा और आपको पुण्य भी मिलेगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। ओम नमो भगवते जय श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णाय नमः। आज के हिंदी ग्रंथ उद्घाटन के समारोह में यहाँ पर आमंत्रित और यहाँ पर आए हुए सभी बहनों भाइयों को मेरे दिल से नमस्कार करता हूँ। बच्चों को प्यार भरा संदेश देते हुए
आज आमंत्रित हमारे मनुज्योति आश्रम के माता जी शोभा अम्मा को, हमारी प्यारी बहन कनुगा जी को, हमारे आश्रम के जो राजे हैं महाराजा उपाज राजा जी, लियो राजा जी और उनके सुपुत्र देवा इंद्रन, नित्य राजा जी, इनको मैं हृदय से अभिवंदन करता हूँ। भगवान श्री लहरी कृष्णा के चरणों में कुछ पंक्तियाँ कुछ सुनाना चाहता हूँ। हे भगवान लहरी कृष्णा, कुछ न पा सके तो क्या गम है, दरबार आपका आया है ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिली है आपके चरणों में, ये क्या किसी जन्नत से कम है। जो अतिथिगण आए हुए हैं उनको दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं माननीय हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रिकेश सेन जी, विधायक वैशाली नगर भलाई, एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करती हूँ कि आपके वचनों से हमारी जितने भी यहाँ पर जन बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमिलनाडु में स्थित मनु ज्योति आश्रम के द्वारा आज पुस्तक का विमोचन होना है और इस अवसर पर मंच पे उपस्थित सभी मनु ज्योति आश्रम से जुड़े हुए महान हस्ती इस मंच पे है। सभी मंचस्थ अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, इस वैशाली नगर विधानसभा में अभिनंदन करता हूं। आप लोग का लक्ष्य है मनु ज्योति आश्रम का एक देश एक भगवान। निश्चित रूप से हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश जो है लगातार इस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है कि सभी लोग सब जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी भी हमें हमेशा इस बात को कहते हैं कि इंसानियत से बढ़कर और इंसानियत के नाते जो भाव होता है जो आप दूसरों के प्रति दिखाते हैं, उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कोई भगवान से बढ़ के भी होती है। क्योंकि आपका भाव जब सेवा भाव होता है और आपका समाज जब सेवा करने वाला समाज होता है तो कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनु ज्योति आश्रम का उद्देश्य भी, उनका उद्देश्य स्पष्ट है कि आप सब लोग इंसानियत के रास्ते पे चले, क्योंकि एक देश है और एक देश है तो एक भगवान होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था हमारी बालिका जो है एक वंदना पढ़ रही थी और उन्होंने उनके एक एक शब्दों को मैं वाच कर रहा था। वो बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग अलग अलग धर्म और जाति से बंधे हुए लोग हैं, लेकिन ईश्वर एक है, भगवान एक है। तो निश्चित रूप से ये देश हमेशा ही सभी जाति और धर्मों का हमेशा सम्मान किया है। हम सब लोग एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं, हम लोग सब एक दूसरे के त्योहारों में बड़ा उत्सव मनाते हैं और इसी से प्रमाणित होता है कि विश्व के नक्शे में सबसे अगर लोकतांत्रिक देश और सभी धर्म और जाति को मानने वाला कोई देश है तो भारत देश है, वो इंडिया है। तो इसलिए मैं इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आप सभी को बधाई और साधुवाद देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा विमुक्ति का रहस्य नामक पुस्तक के विषय में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहूँगा एजगो के द्वारा कि वो जो पुस्तक है मुझ तक अवश्य पहुँचाएँ, ताकि उनके मार्ग पे मैं भी चलने का प्रयास करूं और कहीं ना कहीं एक सही दिशा की ओर आप लोग का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति आप लोग को हो। क्योंकि इस पुस्तक पे कुछ सद्गुण भी बताए गए हैं। इसमें विनम्रता, प्रेम, धीरज, कृतज्ञता, दान, सामुदायिक जीवन, भलाई, सौम्यता, क्षमा करना, भूल जाना, संयम, सात्विक स्वभाव, संतुष्टि, स्वयं ग्रहण, ध्यान, प्रसन्नता, शांति, विश्वास,
सृष्टिकर्ता को पहचानना, सृष्टिकर्ता के साथ स्थायी लगाव करना, सब दीर्घायु हो, प्रसन्न हो, अति प्रसन्न हो, ये लक्ष्य है इस आश्रम का। और वाकई इस लक्ष्य को अगर प्राप्ति करते हैं तो सही में एक देश और एक भगवान है। ये इस पुस्तक का रहस्य है। और इस पुस्तक, मेरे अंदर बहुत बेचैनी है कि इस पुस्तक का कब विमोचन होगा और कब मैं इस पुस्तक को पढ़ पाऊंगा। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं आयोजक। आप सब लोग को पुनः एक बार फिर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अगले बार ये कार्यक्रम जो है नए तरीके से मुंबई में हो, ये शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री डी लियोपोल कोलंबस लॉरी जी को कि वे आए और एक एक कर हमारे जितने अतिथिगण हैं उनका स्वागत करें, सम्मान करें। सर्वप्रथम मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी, माननीय श्री रिकेश सिंह जी का स्वागत सम्मान करें। पुस्तक विमुक्ति का रहस्य हिंदी और तेलुगु दोनों ही भाषा में हम आज यहाँ पर रिलीज करने वाले हैं। राकेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे से हमारे मनोज्योति आश्रम के बारे में कुछ ना जानते हुए भी बहुत कुछ शब्द कहे। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सर। अतिथिगण माननीय श्री राम सूर्यवंशी जी आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तमिलनाडु से आए हुए मनोज्योति आश्रम के द्वारा यहाँ पुस्तक के विवेचन के लिए आए हुए उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस मंच पे जो भी हमारे दिग्विजय जी सिंह और सभी अतिथिगणों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग का जो लक्ष्य है बहुत अच्छा है और ये लक्ष्य में आप कामयाबी पाओगे, यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से। और आप जैसे सोच हर व्यक्ति के रहना चाहिए, जो एक भगवान और एक देश और एक पूरा विश्व बनेगा, ये मेरा विश्वास है। आप लोग को जो एक कदम है बहुत अच्छी कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कह के अपना वाणी को विराम देता हूँ। इसके पश्चात हमारे एक और विशेष अतिथि माननीय श्री वेद प्रकाश पांडे जी, बीजेपी सेक्रेटरी चरोदा, उन्हें मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी के बीच। आप सभी को, बड़ों को मेरा प्रणाम और स्टेज में बैठे आज हमारे सभी जो आए हुए अतिथिगण हैं उन्हीं को सबको मेरा प्रणाम। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है विमुक्ति का रहस्य, आज हम सभी जानते हैं कि भारत एक देश है और एक भारत देश में सभी यहाँ अलग अलग धर्म के लोग, सभी अलग अलग विचारधाराएं के लोग जो अपने अपने भगवान को मानते हैं, सब अभी अपने अपने धर्म को मानते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि सभी अब भारत देश में रहते हैं एक साथ सभी। तो हमारे एक ही भगवान और एक ही देश भारत देश होना चाहिए, जिसके लिए आज यहाँ पर सभी कार्यक्रम करवाए हुए हैं। हमारे सब अलग अलग देश से भी आए हुए हैं और सब अलग अलग धर्म के भी लोग आए हुए हैं। हमारा सिर्फ एक ही संकल्प होना चाहिए, हमारा देश अगर भारत एक है तो यहाँ रहने वाले सभी एक व्यक्ति एक ही भगवान को मानना चाहिए। ये अब हम सभी यहाँ पर आज हम जानना चाहते हैं और मानते भी हैं इस चीज़ को। विमुक्ति का रहस्य जो आज ये किताबें आज हम यहाँ से भैया के द्वारा आप लोगों के बीच समक्ष रखेंगे, वह सभी एक किताबें आप पढ़ेंगे और इसके बारे में आप जानेंगे, समझेंगे। तो शायद ये ऐसा हो कि भैया आपके मन में जो विचार प्रथा जो अलग चल रही हो वो भारत देश को मानने के बाद एक ही भगवान को माना जाए। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए सभी को धन्यवाद। माननीय डी विजय कुमार जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। देश के कोने कोने से आए हुए मनज्योति आश्रम लहरी कृष्णा भक्तजनों को सभी को इस भिलाई पावन जमीन पर आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन आप सभी को।
इस कार्यक्रम जो है हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरत चीज़ है, क्योंकि देश लहरी कृष्णा जी उसका जो उद्बोधन कभी सुनने से ये उनको पता चलता है, हम सब लोग हिंदू मुस्लिम क्रिस्ट ऐसा अलग अलग जगह से हम लोग बनते हुए हम सब लोग जो सोच को आज से जो विमुक्ति रहस्य का नाम से जो पुस्तक हुआ, क्योंकि आज हम लोग जिस स्थिति से चल रहा है, हर किसी को अपना बारे में सोचने के लिए एक मिनट नहीं है, हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा जो क्रोध भावना में रहते हैं, एक दूसरे को बोलने, ये स्थिति से हम लोग दूर होना है। वे विमुक्त रहस्य का जो बुक जो हम सब इतना वैल्यूबल बुक जो रिलीज हो रहा है, इसका बारे में जरूर पढ़े, हम अपना स्वयं इसको जीवन में लेके आए, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बार फिर से इनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। और अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच माननीय श्री लुंडेयप्पा राव जी, रिटायर्ड डीजीएम एनएमडीसी बचेली। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ मैं सर को आमंत्रित करना चाहूँगी। इससे पहले भी इस कार्यक्रम को मैं टीवी में देखा करता था, लेकिन इस बार जो है मुझे इस कमेटी के द्वारा ये मौका मिला है कि बुक का विमोचन के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस कमेटी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। और मैं ये आगे कहना चाहता हूँ, वन गॉड वन नेशन बहुत छोटा सा 2 शब्द है, लेकिन इसमें बहुत सारे रहस्य, अगर हो सकता है उस बुक में पढ़ने से काफ़ी रहस्य हमको पता चले। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बुक को लेकर पढ़ें, और हो सकता है कि इसमें से काफ़ी लोग काफ़ी कुछ नई नई जानकारी हासिल कर सकें। धन्यवाद। लहरे कृष्णा की, लहरे कृष्णा की। और अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच हमारे एक और विशेष अतिथि थी माननीय श्री निशान श्याम कुंवर जी, सिविल इंजीनियर दुर्ग। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं सर को आमंत्रित करना चाहूँगी कि सर प्लीज़ आए और अपने वचनों के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। हमारे देश में तरह तरह के धर्म हैं और इनके अंतर्गत तरह तरह की जातियां भी हैं। जैसे हम एक ही नाम को कई उपनाम दिए जाते हैं। कई बार हम हिंदी में पानी को जल कह देते हैं, इंग्लिश में वाटर कह देते हैं, और अन्य भाषाओं में कई उपनाम हैं। पर संदर्भ जब उसका निकाला जाता है तो वो सिर्फ प्यास बुझाने का काम आता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य प्यास बुझाना है, इसलिए हम वन गॉड वन नेशन को फॉलो करते हैं। हो सकता है कि हम लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हो, अलग अलग सभ्यताएं हों, अलग अलग कहने का तरीका हो, पर सब मार्ग जाके एक ही मार्ग से जुड़ते हैं और वो एक ही राष्ट्र को संबोधित होते हैं। इसलिए हम एक भगवान एक राष्ट्र को कहना ज़्यादा उच्चारित करते हैं, और यही हमारा कहना है और यही हमारा कथन है। बाकी शुभ संध्या। अगली कड़ी में मैं माननीय श्री रॉबर्ट जोसेफ जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं अपने चंद शब्दों के साथ। परमादरणीय लहरी
समाज के सभी गणमान हमारे जितने भी हैं उनको नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। ऐतिहासिक दिन है कि विमुक्ति का रहस्य किताब का आज विमोचन यहाँ पर किया जाएगा। थोड़ा सा मैं कुछ समय लेना चाहूँगा आपसे। मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया। मैं बीमार था, तुम मुझे देखने आए। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया। मैं जब नंगा था, तुमने मुझे पहनाया। ये वचन हमारे पवित्र बाइबल के आधार पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम में से ये जितने भी मैंने काम बताए हैं, अगर किसी भूखे को हमने खिलाया तो आपने ईश्वर को खिलाया, उस परमात्मा को खिलाया जो आज का मिशन है, वन गॉड वन नेशन। तो वो परमपिता परमात्मा है। तो ये रहस्य है जो आज उनके द्वारा हमें हमारे पवित्र ग्रंथ बाइबल में बताया जाता है कि अगर तुमने मेरे लिए अपने भाई के लिए छोटे से छोटे कार्य किए, मतलब तुमने मेरे लिए किए। अगर मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, तो तुमने अपने भाई को नहीं खिलाया, मुझे खिलाया। मतलब ईश्वर को खिलाया। तो ईश्वर इस तरह से सर्वव्यापी है, सर जगह उपस्थित है। तो मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं आज इस महान अवसर के लिए कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस अवसर के लिए, और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस तरह से लहरी समाज पूरे भारतवर्ष में शांति का दूत बनकर लोगों को शांति, प्रेम, एकता, भाईचारा में आगे बढ़ने के लिए सदा अग्रसर है, इसी तरह से इनके साथ इनके बताए हुए मार्ग पर जो परमपिता ईश्वर का जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलकर, क्योंकि हम सब जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, किसी के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, किसी के पास बहुत आलीशान बंगला होगा, किसी के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे, बैंक बैलेंस होंगे, लेकिन हम इस धरती में कुछ दिन के लिए मेहमान हैं। हम यहाँ पर किराएदार हैं। हमारा असली ठिकाना तो ऊपर है, जो परमात्मा का निवास है, जो स्वर्ग कहते हैं हम। वहाँ पर हमको धन संचय करना है, इस संसार में नहीं करना है। अगर आप करोड़पति है, अरबपति है, और आज रात में अगर आपकी जान ले लिया जाएगा तो करोड़ों का धन किस काम का है? कौन खाएगा वो पैसा को? तो इसीलिए हमको यहाँ के बजाय स्वर्ग में परमात्मा ईश्वर के पास में हमें धन इकट्ठा करना है, जहाँ पर कोई चोरी भी नहीं कर सकता है, ना मोर्चा भी नहीं लगता है, और आप उनके साथ जो हमारा प्रण है, जो वन नेशन और एक धर्म और एक राष्ट्र, तभी हम ये साकार कर सकेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद आप सबका। अगली कड़ी में मैं अपने वचनों को यहाँ प्रकट करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय श्री चिरंजीवी भगवत आचार्य, न्यूज़ रिपोर्टर, कोरापुट, ओडिशा। एक बार जोरदार तालियों के साथ। ओम श्री लहरी कृष्णाय नमः। 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 लहरी कृष्ण जड़े मानव नुहंती। लहरी कृष्ण एक मानव नहीं है, से थिले कलिजुगर भगवान। ये कलयुग के वही भगवान है, मानव रूपी भगवान। मानव रूप का एक भगवान। द्वापर युग कृष्ण जेपरी, द्वापर युग का जो श्री कृष्ण का जैसे कलिजुग लहरी कृष्ण जन्म दे, कलयुग में इस लहरी कृष्ण जन्म होके धरा पृष्ठ जन्म ग्रहण करथिले। श्री लहरी कृष्ण के अवतार पे वो जन्म हुए। जो माने जो आदमी मानव ज्योति आश्रम को जाइछंती, मानव ज्योति आश्रम को जो गया हुए हैं, से माने भगवान को लहरी कृष्ण को अद्भुत और लीला देखिछंती। भगवान लहरी कृष्ण का अद्भुत कार्य वगैरह देखे हुए हैं। आज समस्त विभिन्न देश रे मध्य, सब देशों में, हर देश में लहरी कृष्ण को पूजा कराउछि। लहरी कृष्ण के बारे में सबको जानकारी जानते हैं। जो माने विश्वास करंती, लहरी कृष्ण के बारे में कौन जानकारी जानते हैं, भक्ति और पूजा करुछंती, भक्ति से पूजा करते हैं। सेमान निज निजर आशा पूर्ण करिछंती। आशा, उनके आशा पूर्ण हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। जो ये बुक है विमुक्ति का रहस्य,
इसके ब्रीफिंग के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच माननीय श्री एस राजकुमार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भलाई। उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करूँगी। वे आप सभी को इस पुस्तक के बारे में जानकारी देंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ। तो जैसे कि ये मुक्ति का रहस्य जो है, शुरुआत जो है इसकी वन गॉड वन नेशन, जैसे कि एक प्रजा एक ही देश के से शुरू होती है और उसकी शुरुआत होती है मनोज्योति आश्रम तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के स्थित। इस पर्टिकुलर मनोज्योति आश्रम को स्थित इन सन में 1963 में श्री लहरी कृष्णा द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे हम मानवता की जाति और आश्रम मनोज्योति आश्रम जो एक ही भगवान और एक ही देश के सिद्धांतों पर चलता है और लोगों के बीच में एकता को बनाए रखता है। इसका मुख्य लक्ष्य लोगों को अमृता और प्राप्त करने के लिए धर्म युग की जानने की प्रेरणा देता करता है। और ये कार्यक्रम तिरुनेलवेली जिले में मनोज्योति आश्रम के निर्वाहक द्वारा आयोजित किया गया है। इन्हीं गणमान्य लोग शामिल होने आए हैं, जैसे देवाशीष लारी द्वारा लिखित ये पुस्तक प्रमोचन होने जा रहा है आज की तारीख में, जिसका नाम है विमुक्ति का रहस्य। इन उल्लेखनीय कृति और विमुक्ति का रहस्य श्री देवाशीष लारी द्वारा संकलित किया गया है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग इसे पढ़ेंगे उसे आत्मा की शुद्धता होगी और उनकी कला सीखेंगे और इस तरह से वो अपनी आत्मा को और मन की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस पुस्तक को पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आशीष प्राप्त होगा और बताए गए इस पुस्तक में विमुक्ति का रहस्य में आपको 18 गुण के लोग रत्न के सामने हैं। इस गुण का अभ्यास करने वाले से अमृता और मोक्ष का प्राप्त होगा। जैसे आप ये पुस्तक को पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा ये आप वास्तव में कौन है, इस धरती पे आपका उद्देश्य क्या है, आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। इस खोज की उत्तर में मिलेगा, आपको पता चलेगा। प्राचीन काल में ये रहने वाले लोगों का लक्ष्य था स्वास्थ्य, धन, सुख, शांति, सब विचित जीवन प्राप्त करना। उनके लोगों ने प्रयास व्यर्थ रहा और पुस्तक अमरवता के मार्ग में प्रशासित करता रहा। देवाशीष लारी ने सभी धर्मों में, वेदों में अपने इन गुणों को मुक्ति या मोक्ष के मार्ग से सारांश दिया है। विमुक्ति का रहस्य मनुष्य को बनकर जीने के लिए 18 गुण का उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, इस पुस्तक में कई भाषाओं में प्रकाशित किया भी गया है, जैसे कि हमारे तमिल, तेलुगु, हिंदी, असमी, ओडिया, ये सारे भाषाओं में इस चीज़ का प्रकाशित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय श्री देमत बाबू पिंडूर्थी। इनको मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर कि वे आए और अपने बचनों के साथ आज के इस मंच की शोभा बढ़ाएं। लहरी कृष्णा गारी जी का मुख्य उद्देश्य, उनका मुख्य उद्देश्य वन नेशन वन गॉड, एक भगवान एक देश। ఈ కార్యక్రమాలని इस कार्यक्रम में వారి కుమారులు उनके पुत्र లియో ఉపాజ్ రాజా గారు, लियो राजा, उपास राजा, వాళ్ళ తండ్రి గారి ఆశీస్సులను, उनके पिता उनका आशीष, వాళ్ళ ఆశయాలను उनके आशयों के ఈ భారతదేశంలో इस भारत देश में తిరునెల్వేలి में మనుజ్యోతి ఆశ్రమంలో వెలిసినటువంటి मनोज्योति आश्रम में లహరి కృష్ణ గారి ఆశయాలను, लहरी कृष्णा का आशयों को భారతదేశం అంతటా, भारत देश पूरा, ప్రతి పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా, वैसे पूरा प्रपंच को भी, ప్రతి ఒక్క మనిషికి కూడా చేరాలని, प्रति इंसान को भी पहुंचने के लिए విత్తనం భూమి మీద ఏ విధంగా వర్షం వచ్చేటప్పుడు మొలకెత్తడానికి సిద్ధంగా ఉంటుందో, जमीन से जो बीज से झाड़ जैसे उठता है, ఆ విధంగా उसी तरह మనుజ్యోతి ఆశ్రమంలో కాలు పెట్టిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా, वैसे ही तरह भगवान लहरी कृष्ण के बारे में मनोज्योति आश्रम में जो भी पाव रखेगा, ప్రతి ఒక్కరిలోనూ प्रति इंसान को మొలకెత్తాలన్న ఆశయంతో, वैसे बीज यानी कि पेड़ हुए जैसा ఈ కార్యక్రమం ప్రతి స్టేట్లో కూడా జరగడం జరుగుతుంది. हर स्टेट में भी एक कार्यक्रम कराया जा रहा है। లహరి కృష్ణ గారి ఆశీస్సులు లేకుండా, लहरी कृष्णा के आशीष ना रहे, ఈ కార్యక్రమాలకి అటెండ్ అయ్యే అదృష్టం కూడా మనకు రాదు.
आप लोग को ये लहरी कृष्ण का आशीष ना बिना रहे आपको यहाँ आने का प्रस्तुत आपको नहीं मिल सकता है। ఈ సభలకు హాజరవడమే కాకుండా ये सब में आने का कारण नहीं है। ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దయచేసి हर एक మనుజ్యోతి ఆశ్రమంలో కాలు పెట్టాల్సిందిగా लहरी कृष्ण के आश्रम में उन हरि का पाव रखने के लिए వారి ఆశీస్సులను ప్రతి ఒక్కరూ పొందాల్సిందిగా उनके आशीष सभी पाए जैसा మా మనవపూర్వక విన్నపం। हमारे मन पूर्वक का विज्ञापन कर रहे हैं। ఒక సామాన్య వ్యక్తి एक सामान्य व्यक्ति ఏ విధముగా జీవన శైలి ఉంటుందో जैसे से सामान्य व्यक्ति जैसे सर्वसाधारण मनुष्य चलता है అక్కడ అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది। वहाँ पर अनुभव देख के आप पहचान सकते हैं। దయచేసి दया करके ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్క ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి భిన్నంగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ये कार्यक्रम का भिन्न भिन्न प्रकार का कार्यक्रम आश्रम ఒక మనుజ్యోతి ఆశ్రమం మాత్రమే। मनुज्योति आश्रम मात्र है। దయచేసి दया करके ఈ ఒక్క అవకాశాన్ని एक छोटी अवकाश ప్రతి ఒక్కరు విని सुन के మనుజ్యోతి ఆశ్రమంలో కాలు పెట్టాల్సిందిగా मनुज्योति आश्रम में आपके पाव दिए हुए శ్రీ లహరి కృష్ణ గారి ఆశీస్సులు పొందాల్సిందిగా लहरी कृष्णा के आशीष सभी पाए మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం। मन पूर्वक से हम विज्ञापन कर रहे हैं। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री डी प्रभाकर राव, ट्रेजरर तेलुगु वेलफेयर सोसाइटी रायपुर। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपने वचनों से इस मंच की शोभा बढ़ाएं। On this auspicious occasion of releasing the book Vimukti Rahashyam, which indicates there is only one nation and one God. Although we are having different religions, different caste, different communities and states, irrespective of that, we are under one nation, so we must await that we should be under the blessings of one God and we worship one. Simultaneously, I would like to extend my gratitudes for the Manu Jyoti Ashram, Tamil Nadu, for extending this type of activities, and the book indicates how to get rid of this sorrowful life. Whatever the bhavasagaras, whatever the sukhsagaras we are having, we have to overcome of this only by worshipping the one God. So the spiritual knowledge, spiritual relation and spiritual interest must be aware by one and all. And with these words, I would like to extend my sincere thanks for Telugu Welfare Society, whom you have invited, honored and given an opportunity to address you. Once again, I shall thank you. Dhanyawad. और हमारे अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं माननीय श्री विजय बघेल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुर्ग। एक बार जोरदार तालियों के साथ और एक प्यारी सी गीत के साथ मैं उनका आज के इस मंच पर स्वागत करना चाहूंगी। सर प्लीज।
आज के इस कार्यक्रम जिस लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, पुस्तक के विलोचन के लिए विमुक्ति का रहस्य, इसके बारे में आप सभी को बताने के लिए माननीय श्री लियोपोल लॉरी जी, मनोज्योति आश्रम तमिलनाडु से आप सभी के बीच एक बार जोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करना चाहूंगी कि वे आए और अपने वचनों से आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாய நமக. ओम नमो भगवते श्री लहरि कृष्णाय नमः। அன்பார்ந்த ஆன்மீக நண்பர்களே, मेरे प्यारे धार्मिक भाइयों और बहनें, இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவின் மூலமாக உங்களை எல்லோரும் இங்கே காண்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். इस पुस्तक विमोचन में आप सभी को देखकर खुशी हूँ। அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இந்த விழாவை வந்து நீங்கள் சிறப்பித்து கொடுத்ததற்காக மனுஜோதி ஆசிரமத்தின் சார்பாகவும், साथ ही मैं इस कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए मनोज्योति आश्रम के तरफ से தேவாசிர் லாரி அவர்கள் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் என்னுடைய வாழ்த்துதல்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். देवासीर परिवार के तरफ से आप सभी को धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। இந்த மனுஜோதி ஆசிரமமானது यह मनोज्योति आश्रम 1963 வருடம் 1963 साल में ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அவர்களால் அது ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. श्री लहरि कृष्ण के द्वारा यह स्थापित किया था। இது எதற்காக ஸ்தாபிக்கப்பட்டது என்றால், यह किस लिए स्थापित हुआ बोले जाने से, ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்ற கொள்கையை இந்த உலகம் முழுவதும் எடுத்து செல்ல வேண்டும். एक ही भगवान एक ही देश सिद्धांत को पूरा दुनिया में प्रकट करने के लिए ஜாதி மத இன மொழி வேறுபாடு இல்லாமல் बिना जाति मत रंग भाषा का भेदभाव நாம் அந்த கடவுளை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்ற காரியத்திற்காக இந்த ஆசிரமமானது நிறுவப்பட்டது. यह भगवान की आराधना करने के लिए आश्रम स्थापन किया गई है। அதேபோல் इसी प्रकार இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறையினர் கடவுளை பற்றி இலவசமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் இந்த ஆசிரமத்தினுடைய முக்கிய நோக்கமாக आज இருக்கிறது. की पीढ़ियों को ईश्वर के बारे में मुफ्त में जानकारी मिले हमारा मुख्य उद्देश्य। இந்தியாவில் அநேக ஜாதிகள் மூலமாகவும் மதங்கள் மூலமாகவும் நாம் பிரிந்திருந்தாலும் हम भारत में कई विभिन्न जातियों और धर्मों में विभाजित होने से भी நாம் இந்தியர்கள் என்ற ஒரே ஒரு காரியத்தின் நிமித்தமாக நாம் ஒன்றுபட்ட மக்களாக இன்றைக்கு நாம் இருக்கிறோம். आज हम इस तत्व में एकजुट हैं कि हम भारतीय हैं। ஆதியிலிருந்தே இந்தியா ஒரு புண்ணிய பூமியாகவும், भारत देश शुरू से ही एक पुण्य भूमि का जैसे இங்க ஒரு பக்தி நிறைந்த நாடாகவும் இந்த நாடு விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. भक्ति से भरी भूमि का जैसे ये देश जाना जाता रहा है। இந்தியா தான் உலகம் முழுவதற்கும் பக்தி மார்க்கத்தை, அந்த சத்திய மார்க்கத்தை காண்பித்த ஒரு நாடாக இந்தியா விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. भारत एक देश है कि जिसने पूरी दुनिया को सत्य मार्ग दिखाता है। நீங்கள் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் आप किसी भी धर्म में हो, காலையிலேயே கடவுளை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்துடன் இருக்கக்கூடிய ஒரே நாடு இந்தியாவாக தான் இருக்கிறது என்பதை இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்க முடியும். भारत ही एकमात्र ऐसा देश जहां आपको मन में सुबह उठते ही भगवान को प्रार्थना करने का विचार आता है। எந்த ஒரு நாட்டிலும் நாம் அவ்விதமாக காண முடியாது. किसी भी देश में हम इस तरफ नहीं देख सकते। காரணம் என்னவென்றால், कारण यह कि காலையிலே இங்கே நாம் கோயில்களில் அங்கே கடவுளை குறித்த பாடல்கள் ஒலிப்பதை நாம் கேட்க முடியும். प्रातःकाल मंदिरों में हमें भगवान का कीर्तना सुनाई देता है। மசூதியில் தொழுகை குறித்த காரியத்தை அவர்கள் செய்வதை நாம் காண முடியும். मस्जिदों में आराधना सुनाई देता है, नमाज सुनाई देता है। அதேபோல் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய ஆலயங்களிலும், கிறிஸ்தவ ஆலயங்களிலும் அவர்கள் காலையிலே எழுந்து அங்கே கடவுளை குறித்து அவர்கள் தொழுது கொள்வதையும் நாம் பார்க்க முடியும். ईसाई मंदिरों में सुबह प्रार्थना करते हुए देख सकते हैं। அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக பூமியாக இந்தியா விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. इसी वजह से भारत देश एक आध्यात्मिक भूमि माना जाता है। ஆனால் நாம் எதில் நாம் பிரிந்திருக்கிறோம்? परंतु हम किसमें भिन्न हैं, अलग अलग हैं। நாம் கடவுளை மறந்துவிட்டு हम भगवान को भूलकर நம்மளுடைய சில பெருமையின் நிமித்தமாக நாம் இன்றைக்கு பிரிந்து நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். अपने अहंकार के कारण अलग अलग जी रहे हैं। ஆனால் परंतु ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அவர்களுடைய முக்கிய நோக்கம் என்னவென்றால், हरे कृष्ण जी का मुख्य उद्देश्य है कि எல்லா வேதங்களையும் எல்லாரும் படிக்க வேண்டும். सभी लोगों सारे वेद पढ़ना चाहिए। எல்லா வேதங்களும் பைபிள், பகவத்கீதை, குரான் எல்லாம் அன்பைத்தான் போதிக்கிறது என்பதை குறித்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த ஆசிரமத்தை ஆரம்பித்தார்கள். उन्होंने यह आश्रम हमें यह समझाने के लिए शुरू किया कि सारे वेद, बाइबिल, भगवद्गीता, कुरान हमें प्रेम सिखाते हैं। அதை நாங்கள் இலவசமாக இன்றைக்கு நாங்கள் மக்களுக்கு அதை எடுத்துக்கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறோம். हम इसे लोगों तक मुफ्त में पहुंचाते हैं। ஆக இன்றைக்கு நாம் அன்னதானம் செய்கிறதை நாம் காண முடியும். इन दिनों अन्नदान करते हुए देखते हैं। ஆனால் நாங்கள் இந்த மனுஜோதி ஆசிரமத்தின் மூலமாக मनोज्योति आश्रम के तरफ से நாங்கள் மக்களுக்கு அறிவு தானத்தை, கடவுளை குறித்த அறிவு தானத்தை இன்றைக்கு நாங்கள் இலவசமாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். हमें लोगों को भगवान के ज्ञान को हम मुफ्त में दान कर रहे हैं। அதை எடுத்து செல்வதற்கு அநேக உங்களை போன்ற பெரியவர்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருப்பதற்காக இந்த நேரத்தில் உங்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். इसे बाहर ले जाने के लिए सहायता करने वाले आप सभी लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं। விமோச்சன ரகசியம் என்ற இந்த
புஸ்தகத்தை என்னுடைய தந்தை அவர்கள் இதை தொகுத்து எழுதியிருக்கிறார்கள். मेरे पिताजी ने विमुक्ति का रहस्य नाम का यह पुस्तक लिखा है. இதை अनेक மொழிகளில் நாங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம். हम इस पुस्तक को अनेक भाषाओं में विमोचन किया है. இன்றைக்கு இந்த பிலாயில் இதை உங்களுக்கு முன்பாக எங்கள் வெளியிடுவது இந்தியில் வெளியிடுவதை நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். अब बिलाई में इस पुस्तक को विमोचन करने के लिए हम संतुष्ट हैं. அவை இந்த புஸ்தகத்தை உங்களுடைய தெரிந்த அவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு சென்று சேர்ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் மனுஜோதி ஆசிரமமானது இந்த காரியத்தை இங்கே செய்து கொண்டிருக்கிறது. इस कार्यक्रम का आयोजित किया है कि आप अपने परिचय वालों को यह पुस्तक बांट सके. அதேபோல எங்களுடைய அழைப்பிற்கு இணங்கி தங்களுக்கு अनेक வேலைகள் இருந்தாலும் हमारे आमंत्रण के स्वीकार करके आपको ज्यादा काम रहने से भी आप आए. வந்து இந்த விழாவினை சிறப்பித்து கொடுத்ததற்காக इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய எல்லா பெரியவர்களுக்கும் மனுஜோதி ஆசிரமத்தின் சார்பாகவும் मंच पर बैठे सभी अतिथियों को मनुज्योति आश्रम के तरफ से தேவாசிர் லாரி அவர்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் என்னுடைய வாழ்த்துதல்களையும் நன்றிகளையும் கூறிக்கொண்டு நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். देवासिर लारी के परिवार के तरफ से मैं आपको अपना धन्यवाद और अभिनंदन अर्पण करता हूँ. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாய நமக. ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः. ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன். एक ही देश एक ही भगवान. मनोज्योति आश्रम के द्वारा एक पुस्तक का उद्घाटन आज यहाँ होने जा रहा है, जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं, जिस पुस्तक का नाम मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगी, विमुक्ति का रहस्य नामक पुस्तक, जिसके रचयिता माननीय श्री देवासिर लंकाड्यू इस पुस्तक के रचनाकार हैं. एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं और उस पुस्तक के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं, जिसमें कुल 18 गुणों का वाचन किया गया है. एक बार इस पुस्तक के इन सभी वचनों के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं. और इस पुस्तक के उद्घाटन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री विजय बघेल जी की उपस्थिति में पुस्तक के रिलीजिंग के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय श्री डी विजय कुमार जी, डिविजनल कोऑर्डिनेटर रायपुर. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि जिस घड़ी का हम सभी इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है. विमुक्ति का रहस्य हिंदी एवं विमुक्ति का रहस्यामो तेलुगु में ये पुस्तक रिलीज यहाँ पर होने जा रही है. और अगली कड़ी में हमारे आज के अतिथि माननीय महोदय श्री विजय बघेल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुर्ग. एक बार जोरदार तालियों के साथ सर प्लीज आप यहाँ पर आए. विमुक्ति का रहस्य ऐसे पवित्र और पुण्य कार्य में जो हमें रास्ता दिखाने वाले पुस्तक का अभी हम सब ने विमोचन किया.
मैं इसके लिए संपादक मंडल को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, उपस्थित सभी इस पुण्य कार्य में सहभागिता निभाने आए हुए देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, आप सबका इस शुभ कार्य में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग अनेक देवी देवता को मानते हैं, लेकिन ये भी सत्य है ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर के हम संतान हैं। परमात्मा एक है, हम सब आत्माएं हैं और हम सब अपने जीवन को पूर्ण करके हमारी जो ये मिट्टी नुमा शरीर है उसे हम छोड़कर हमारी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। एक ही भगवान, एक ही देश, ये मनु ज्योति आश्रम का एक मुख्य सिद्धांत है। मुझे कुछ बातें अभी शंकर जी बता रहे थे उस आश्रम के बारे में, और जैसे बताए मेरी इच्छा भी बढ़ गई कि मैं भी उस आश्रम में जाऊं, वहाँ की गतिविधि से वाकिफ़ हों। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी जातियों से हमारा लगाव है और सबके प्रेम के बदौलत आज हम इस सम्मान के काबिल भी बने हैं आप सबकी सेवा के लिए। मगर मन में जब खुले दिल से हम किसी बात को सोचते हैं तो निश्चित रूप से भले ही हम बहुत सारे देवी देवता की पूजा करते हैं अलग अलग रूप में, लेकिन अंत में सबके जाने का उद्देश्य वही है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के उद्देश्य एक ही है। सबको उस मंजिल तक पहुंचना है, रास्ते भले अलग अलग हों। आज जिस तरह 18 रहस्य इस पुस्तक में बताए गए हैं जो हमारे जीवन को सद्गति प्रदान करेगी, दीर्घायु, हम सब, हमारा शरीर भले ही हम छोड़ दें लेकिन हमारा जीवन हमेशा याद किया जाएगा। अगर ये सारे सद्गुण आपके अंदर हों तो हम अमर हो जाते हैं। हम इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन इन सब गुणों के कारण हमें जाना जाएगा, हम इन्हीं गुणों के कारण अमर हो जाएंगे। तभी तो ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको हम सदा सदा याद रखते हैं और उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें याद करते हैं। ऐसे ही आदर्श विभिन्न पुस्तकों में, अनेक ग्रंथों में हम पढ़ा करते हैं और आत्मसात करने का प्रयास भी करते हैं। और आज उसी उद्देश्य को लेकर जो मनु ज्योति आश्रम की स्थापना की गई और वहाँ आप सब जितने भी अनुयायी हैं वो जाकर इन गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा लेते हैं। सवाल ये है कि सिर्फ घूमने के लिए, सिर्फ देखने के लिए ही जाएं तो ये हमारे जीवन को सार्थक नहीं बनाएगी। सार्थकता तभी होगी जब हम जिस उद्देश्य से वहाँ जा रहे हैं उस उद्देश्य को हम पूरा करें और अपने जीवन में उतारें। और आज इसी उद्देश्य के लिए आप भले ही वहाँ तक ना पहुँच पाए, लेकिन ये पुस्तक आपको वहाँ के नज़दीक आप अपने आप को पाएंगे। विमुक्ति का रहस्य, इस रहस्य को जो जान गया उसका जीवन अमर हो गया
ये इस पुस्तक के माध्यम से आज हम सब ने मिलकर इसका विमोचन किया और मेरा सौभाग्य इस पुण्य कार्य में मेरे जैसे व्यक्ति को भी आप सब ने सहभागिता मुझे आप सब ने दी, उसके लिए पूरे परिवार को, इस मुक्ति परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह हमारा संबंध, हमारा प्रेम एक दूसरे से बना रहे और सब ईश्वर को परमपिता परमेश्वर मानकर हम उसकी छत्र छाया के नीचे हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, सात्विक रहें, समृद्ध रहें, संस्कारवान रहें। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री विजय बघेल जी के लिए। अगली कड़ी में मैं चंद शब्द कहने के लिए माननीय श्री शंकर प्रसाद एल विमला जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ विमला चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई। एक बार जोरदार तालियों के साथ। मैं 10 साल से मनोज्योति आश्रम का एक हिस्सा हूँ। भगवान लहरी कृष्ण का भक्त हूँ। मेरे बारे में मैं ज़्यादा ना कहूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो कारोबार है, मैं फूड एक्सपोर्ट करता हूँ। जितने भी खाने की चीज़ें मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। ज़्यादा करके दुबई में मेरा जितने भी खाने की चीज़ें यहाँ से जाता है। मैंने मेरे ज़िंदगी में, आज मेरा उम्र 63 है, मैं 63 साल का आदमी हूँ। मेरे ज़िंदगी में मैं कहीं मस्जिदें, गुरुद्वारे, चर्चे, हर मंदिर में गया हूँ, लेकिन मैंने मनोज्योति आश्रम में कुछ अलग चीज़ देखा है। जिन्होंने यहाँ पे नहीं आया है उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार मनोज्योति आश्रम में आके सिर्फ वहाँ का धूल, जो वहाँ का जो मिट्टी है, उसकी खुशबू, वहाँ के लोग, वहाँ का प्रेम, ये मैं अपने बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। आप खुद जब आप आएंगे वहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा। अभी फ़िलहाल मैं कल ही तिरुपति से मैं कल ही आया हूँ। ये जो मेरा बाल जो देख रहे हैं, मैं वही मुंडन किया हूँ। और मैं जो हमारे सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम के लेटर के साथ मैंने मंदिर पे गया। वहाँ जाने के बाद किसी का भी कोई रेस्पेक्ट नहीं है। सीएम के आदमी होने के बावजूद भी मुझे पैसा देना पड़ा, वो तो दे दिया, उसका बारे में कुछ ज़्यादा ये बात नहीं। सवाल पैसा का नहीं है, सवाल आपका इज्जत का। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति का लेटर लेके जाते हो और आपको एक सेकंड भी आपको दर्शन होने को देता नहीं है, तो ये हमारे सौभाग्य है। हमें दुख लगता है हिंदू होने के गर्व। हम आरएसएस है, हम इन द एज ऑफ 7 years मैं आरएसएस में हूँ। तो ऐसे कहीं अभी चर्च में जाओ तो वो एक डब्बा लेकर आता है, वो डब्बे में डालने के लिए कहता है। मंदिर में जाओ तो 10,000 का एक दर्शन है, 2,000 का एक दर्शन है, 1,000 का एक दर्शन है, 500 का एक दर्शन है, 300 का एक दर्शन है। 300 लेने के बावजूद भी आपको 8 से 10 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये कौन सी बात है? लेकिन एक बार आप लोग मनोज्योति आश्रम में आइए, वहाँ का देखिए, उसके बारे में आप कहेंगे कि मनोज्योति आश्रम में क्या है। ये मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग आए नहीं हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, बस एक बार मनोज्योति आश्रम आइए। और लहरी कृष्ण का भगवान के बारे में मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँ, यहाँ पे लोगों को बहुत कुछ मालूम है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए समाप्त करता हूँ। आप सबको वंदन करता हूँ। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अतिथि देवो भव, तो हमारे सर्वप्रथम
अतिथि का सम्मान करने के लिए मैं माननीय श्री लियोपोल लॉरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए, स्वागत सम्मान करें। जग का तू रखवाला, मेरे मन में बसे लहरी कृष्णा। जग का तू रखवाला, मेरे मन में बसे लहरी कृष्णा। तुझ बिन जीवन अधूरा है, इस जग का तू ही उजाला। तुझ बिन जीवन अधूरा है, इस जग का तू ही उजाला। जग का तू रखवाला, मेरे मन में बसे लहरी कृष्णा। तुझसे जुड़ा जब नाता ये मेरा, दुनिया से नाता है छूटा। तुझसे जुड़ा जब नाता ये मेरा, दुनिया से नाता है छूटा। साथ तेरा ही है मुझको तो काफी, दूर न मुझसे तू होना, दूर न मुझसे तू होना। जग का तू रखवाला, मेरे मन में बसे लहरी कृष्णा। जग का तू रखवाला, मेरे मन में बसे लहरी कृष्णा। अगली कड़ी में मैं माननीय श्री काजा रामकृष्ण जी भगवत गीता वार्षिणी विजयवाड़ा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। ఏ కాలమందు ధర్మమునకు హాని కలిగి అధర్మము వృద్ధినందును, ఆయా సమయములందు శిక్ష రక్షణ, దుష్ట శిక్షణ, ధర్మ సంరక్షణ కొరకు ప్రతి యుగమున అవతారము దాల్చుచున్నాను. భగవద్గీతలో అనేక సందర్భాల్లో ధర్మం గురించి మాట్లాడారు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః, అలాగే యదా యదా హి ధర్మస్య సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అని ఇట్లా ధర్మం గురించి ఎన్నో సందర్భాల్లో కృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో ఉద్ఘాటించడం జరిగింది. అసలు ధర్మం అంటే ఏమిటి? అదే మనకి ధృతి క్షమాదయో అస్థేయం శౌచమింద్రియం నిగ్రహ దిర్విద్య సత్యం అక్రోధో దశక ధర్మ లక్షణం. 10 లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాయంట ధర్మానికి. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ధైర్యము. మనకి ధర్మానికి ఉండవలసిన మొదటి లక్షణం ఏంటంటే ధైర్యం. ఏ పనన్నా సరే పూర్తి అవుతుందనే నమ్మకంతో మనం ప్రారంభించడమే మొట్టమొదటి అంశం అన్నమాట. తర్వాత రెండోది ఏంటంటే క్షమాగుణము. అవతల వ్యక్తి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగించినా కూడా వారిని నవ్వుతూ మనం క్షమించటం అనేది ధర్మము యొక్క రెండో లక్షణం. మూడోది మనోనిగ్రహం అండి. ఎటువంటి ఉద్రేక పరిస్థితి వచ్చినా, ఎటువంటి ఆనంద పరిస్థితి వచ్చినా దాన్ని నిగ్రహించుకోవటమే మనోనిగ్రహం. నాలుగోది ఏంటంటే పరాధీన సొమ్ము విముఖత. బయట వారి సొమ్ము ఏదైనా సరే
దాన్ని మనం ఇష్టపడటం అనేది ఉండకూడదు. ఇది 4వ ధర్మం అన్నమాట. తర్వాత 5వ ధర్మం ఏంటంటే శరీర శుచిత్వము. అంటే ఏంటి, మన యొక్క శరీరాన్ని మనం ఎంత శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే మనకి అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. తర్వాత కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియ నిగ్రహము. మనకి 10 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనం నిగ్రహపరచుకోవాలి. అప్పుడే మనకి ధర్మ ఆచరణ ఒకటి జరుగుతుంది. చివరికి శాస్త్ర విజ్ఞానము. ఏ శాస్త్రాన్నైనా సరే మనం కూలంకుషంగా పరిశీలించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుని దాన్ని 10 మందికి తెలియజేయటమే ఇక్కడ శాస్త్ర విజ్ఞానం. చివరికి వచ్చేటప్పటికంటే సత్యవాక్య పరిపాలన. మనం ఏదైనా సరే సరైన సమాచారం ఇవ్వటం, అలాగే యథార్థాన్ని మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయటమే ఇక్కడ ధర్మంలో చివరి అంశం. ఈ 10 అంశాలు కూడా ధర్మ ఆచరణకి మూల కారణాలని చెప్పి మనుధర్మ శాస్త్రంలో చెప్పడం జరిగింది. మాకు విలువైన సమయాన్ని కేటాయించినందుకు మనుజ్యోతి ఆశ్రమం ప్రతి ఒక్కరికి. అలాగే నేను వచ్చేటప్పుడు ఒక మాట అన్నారు, 1986లో లహరి కృష్ణ గారు ఇక్కడ మనకి ఒక కార్యక్రమం చేశారు. ఆ నాంది ఇవాళ కూడా మహావృక్షమై ఇక్కడ మీ అందరితో మేము వచ్చి 2 మాటలు మాట్లాడే భాగ్యం కలిగినందుకు వినయపూర్వక హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। आज यह इस कार्यक्रम विमुक्ति का रहस्य यह पुस्तक के विमोचन में उपस्थित हुए सभी अतिथिगणों का मैं सहृदय धन्यवाद करता हूँ। मुख्य रूप से मनुज्योति आश्रम 1963 में स्थापित किया गया था श्री नारायण श्री लहरी कृष्णा के द्वारा। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि मानव जाति को विमुक्ति का प्रदान करना, अमृता प्रदान करने के लिए जो मार्ग चाहिए था उस मार्ग का दर्शन कराने के लिए उन्होंने पूरे 20 वर्ष पूरा विश्व का भ्रमण करके एवं सारे पुराणों ग्रंथों सारे धर्मों का जो सार है उसको कई सारे किताबों में लिख करके उन्होंने सारे मानव जाति को बोधन किया। एवं उसके बाद उनके जो आगे की पीढ़ी जो देवासी लहरी जी हैं उस सार का जो मानव को अमरता प्रदान करती है उसका एक सारांश को जो मानव को विमुक्ति प्रदान करे उस सारांश का ही एक अंश जो है ये विमुक्ति का रहस्य है। ये सारे मानव जाति को उचित में बांटने के लिए ही प्रकट किया गया। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए मुख्य अतिथि श्री माननीय विजय बघेल जी का सांसद दुर्ग का हम मनुज्योति आश्रम के तरफ से सहृदय धन्यवाद करते हैं। एवं विशेष अतिथि माननीय श्री रिकेश सेन जी का हम विधायक वैशाली नगर जी का हम मनुज्योति आश्रम के तरफ से सहृदय धन्यवाद करते हैं। एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर उपस्थित हुए सभी अतिथिगण का मनुज्योति आश्रम के तरफ से सहृदय धन्यवाद करते हैं। एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी अतिथिगण जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका हम मनुज्योति आश्रम के तरफ से सहृदय धन्यवाद करते हैं। एवं इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए हमको जो सभी सहयोग दिए हैं, चाहे लाइटिंग के साउंड सिस्टम एंड होटल वाले सारे जो भी मेंबर्स इसमें हमको सहयोग प्रदान किए उनका हम मनुज्योति आश्रम के तरफ से सहृदय धन्यवाद करते हैं। एवं इस विमुक्ति रहस्य का किताब का विमोचन करने के लिए मनुज्योति आश्रम से आकर यहाँ पे इस भिलाई में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए हम भिलाई के तरफ से मनुज्योति आश्रम एवं देवासी लहरी जी के परिवार MD लियोपाल जी का हम सहृदय धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। सभी को धन्यवाद। ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు। ఈ యొక్క పుస్తక రిలీజ్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి వారందరికీ, पुस्तक कार्यक्रम का आने वाले सभी अतिथि को, వేదిక మీద అలంకరించి ఉన్న వారికి,
मंच में बैठे हुए सभी अतिथियों को, వేదిక ముందు కూర్చుని ఇప్పటి వరకు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన వారికి, मंच के सामने बैठे प्रति अतिथिगण को, అందరికీ కూడా మణిజ్యోతి ఆశ్రమం తరపున మా ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాం. सभी को हम मनज्योति के आश्रम की तरफ से हम धन्यवाद कर रहे हैं. ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమం ముగించబడింది. इससे हम कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं. స్టేజ్ మీద కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఎదరికి వచ్చి కూర్చుంటే ఒక డ్యాన్స్ తోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించాలనుకుంటున్నాం. सभी मैं विनती कर दे रहा हूँ कि सब मंच में बैठे हुए हैं सभी सामने बैठ के वो कार्यक्रम को देख के जाएं. ఒక డ్యాన్స్ అన్న కార్యక్రమం ఉంది. एक डांस एक कार्यक्रम है, దాన్ని కూడా మనం వీక్షించి उसको देख के అందరూ కూడా భోజనం చేసి వెళ్దాం. सभी भाइयों बहनों को भोजन करके सभी जा सकते हैं. अनन्तलोकमेले विश्वदारि राज्यपाल अकण्ठ ख्यातिगांचि तेजरिल्ल नीरुपाल जय जय नित्य किरीटी श्री श्री लहरी कृष्णया जय जय नित्य किरीटी विजय में विश्वरायुडा अनन्तलोकमेले विश्वदारि राज्यपाल अकण्ठ ख्यातिगांचि तेजरिल्ल नीरुपाल जय जय नित्य किरीटी श्री श्री लहरी कृष्णया तुझसे जुड़ा जब नाता ये मेरा दुनिया से नाता है छूटा तुझसे जुड़ा जब नाता ये मेरा दुनिया से नाता है छूटा साथ तेरा ही है मुझको तो काफी दूर न मुझसे तू होना दूर न मुझसे तू होना जग का तू रखवाला मेरे मन में बसे लहरी कृष्णा जग का तू रखवाला मेरे मन में बसे लहरी कृष्णा थे इस तन से टूटे हुए मन से तुझको ही मैंने पुकारा गूथे इस तन से टूटे
टूटे हुए मन से तुझको ही मैंने पुकारा। जीवन की ज्योत जलाकर तू मुझ में विश्वास तुझ पर जगाया, विश्वास तुझ पर जगाया। जग का तू रखवाला मेरे मन में बसे लहरी कृष्णा। जग का तू रखवाला मेरे मन में बसे लहरी कृष्णा। तुझ बिन जीवन अधूरा है इस जग का तू ही उजाला। तुझ बिन जीवन अधूरा है इस जग का तू ही उजाला। जग का तू रखवाला मेरे मन में बसे लहरी कृष्णा।